بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے اور ٹیم راہ ہدایت کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج اس نشست میں ہم بات کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 25 پہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے حبیب، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، ایک تو اس آیت مبارکہ کا سیدھا سیدھا مفہوم ہے جو کہ بڑا ہی واضح ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس جنت کا منظر جو ہے وہ بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس جنت میں ہم لوگوں کے لیے کیا ہے، پاکیزہ بیویاں جو ہیں وہ بھی ان کا انتظام ہے، اور ہم لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا جو باطنی مفہوم ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا میسج جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں میں دو صفات پائی جا رہی ہیں۔ وہ کون کون سی دو صفات ہیں ناظرین؟ پہلی صفت ہے ایمان والے اور دوسری صفت ہے نیک عمل۔ ناظرین، جب تک ہمیں ایمان والے لوگ اور نیک اعمال جو ہیں ان کی جو ہے وہ سمجھ نہیں ہوگی، ہم اس آیت مبارکہ کا جو اگلا مفہوم ہے اس تک جو ہے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمان والے لوگ۔ کون ہیں در حقیقت ایمان والے؟ ناظرین، آج ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے گا، ایمان در حقیقت نام ہے ایک احساس کا۔ کس احساس کا؟ کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس کا رب اس کو ہمیشہ کے لیے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کا رب اس کو ہمیشہ کے لیے سن بھی رہا ہے، وہ کسی بھی لمحہ اکیلا نہیں ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیتا ہے اور اس احساس کو اپنے اندر بڑھاتا چلا جاتا ہے تو ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے، اور اس کیفیت کو اگر وہ بڑھاتا چلا جائے تو اس کا مطلب وہ اپنے ایمان کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو در حقیقت ایمان والے لوگ کون ہیں؟ ایمان والے لوگ وہ ہیں جو خود کو اس یقین پر کھڑا کر لیں کہ ان کا رب ان کو دیکھ بھی رہا ہے، ان کا رب ان کو سن بھی رہا ہے، اور کسی بھی لمحہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، اس احساس کا نام، اس فیلنگ کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب آئیے ہم سب اپنے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، کیا ہم ایمان والے ہیں؟ اگر تو ہم ایمان والے ہیں تو اس کا مطلب اس آیت مبارکہ میں جو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں وہ پھر آپ کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں۔ اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو پھر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے ہم کیوں ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ ہو گئی ایمان والوں کی ڈیفینیشن۔ آگے چلیں، نیک اعمال۔ آخر نیک اعمال کیا ہیں؟ ناظرین، ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہم پر
दो तरह के हकूक जो हैं वो वाजिब हैं। नंबर 1 हकूकुल्लाह, नंबर 2 हकूकुल इबाद। हम हकूकुल्लाह पर तो ज़ोर देते हैं, हकूकुल इबाद को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। मैं अपने इस मुआशरे की बात करता हूँ। हमारा मुआशरा जो हमें मैसेज दे रहा है वो क्या मैसेज दे रहा है? हमारे मुआशरे में जो चीज़ आम चल रही है, जो 5 वक्त का नमाजी है, जो ज़कात देता है, जो हज करता है, जो उम्रा करता है, जो रोज़े रखता है, वो बड़ा नेक और परहेज़गार है। हकूकुल इबाद अदा करे या हकूकुल इबाद अदा ना करे, उसकी किसी को कोई टेंशन नहीं। बस जेड़ा 5 टाइम मसीते जांदा वा वो हाजी साहब ने, ते जेड़े 5 टाइम मसीते जेड़ा ओके दी रिपोर्ट है, उमरा करदे हज करदे, उन्हां नूं पूरा महल्ला सिर ते चुकी फिरदा, ओ जी हाजी साहब आ गए, हाजी साहब आ गए, हाजी साहब आ गए। नाजरीन, जब तक हम नेक अमाल की असल रूह को नहीं समझेंगे, हमारे लिए वो खुशखबरियां नहीं हैं जो इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमा रहा है। तो नेक अमाल को अगर समझना है तो इसको इस जाविये से समझिए। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो नाज़रीन उसका फ़ायदा तो फ़कत मेरी ज़ात को है। अगर मैं रोज़ा रखता हूँ उसका फ़ायदा तो फ़कत मेरी ज़ात को है। अगर मैं हज करता हूँ, उम्रा करता हूँ, उसका फ़ायदा तो फ़कत मेरी ज़ात को है। अगर मैं कोई ज़िक्र अज़कार करता हूँ उसका फ़ायदा तो फ़कत मेरी ज़ात को है। अगर मैं ज़कात देता हूँ वो तो मैं अपना माल पाक करने के लिए दे रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये तो नेकी वाला काम ना हुआ, ये तो सेल्फिशनेस हो गई, खुद गर्जी हो गई। और मैं जो भी कर रहा हूँ फकत अपने लिए कर रहा हूँ। नेक अमल वो है, फायदा उस अमल का होगा जिससे मेरी जात को फायदा ना पहुंचे, किसी दूसरे की जात को फायदा पहुंचे। अगर मेरी जात से ऐसा अमल हो रहा है तो इसका मतलब वो दर हकीकत असल जो है वो नेक अमल है जिसका इस आयत मुबारका में जिक्र किया जा रहा है। हम क्या करते हैं, हकूकुल्लाह अदा करने के बाद हम बड़े सैटिस्फाइड हो जाते हैं, बड़े मुतमिन हो जाते हैं कि भाई आपा तो सारे नेकी दे काम कर ले आ, हुण मेरा रब मेरे तो राजी है। दर हकीकत रब राजी नहीं होता। याद रखिएगा, ना तो आपके रब को आपके सजदों की जरूरत है, ना आपके रब को आपके हज की जरूरत है, ना आपके रब को आपके उम्रे की जरूरत है, ना रोजे की जरूरत है, ना ज़कात की जरूरत है। मेरा रब तो इन तमाम चीजों से पाक है। अगर हम ये तमाम मामलात करते हैं तो फकत अपने लिए करते हैं। असल नेकी वो है जिसमें हम खुद को तो नुकसान पहुंचा लें लेकिन दूसरे का भला कर जाएं। ये असल नेकी है। अगर गौर करें तो रब भी तो हमारे साथ यही कर रहा है। कोई गुनाह करता है, मेरा रब उसको फिर भी ऑक्सीजन दे रहा है। कोई जितना मर्जी झूठ बोले, व्हाटएवर, जो मर्जी करे, मेरा रब ना उसका खाना बंद करता है, ना उसकी ऑक्सीजन बंद करता है, ना उसकी सेहत और तंदुरुस्ती में कोई कमी लेके आता है। उसको जो है वो एग्जैक्ट टाइम पे जो वक़्त मुकर्रर है फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ इसका रिज़्क इस तक पहुंचा के आओ। तो नाजरीन, आइए बखील ना बनिए, कंजूस ना बनिए। असल नेक अमल जो है उसको समझे। असल नेक अमल क्या है? असल नेक अमल जो है वो ये है कि आपकी ज़ात से रब की मखलूक को फ़ायदा पहुँचे। और इस बात का मतलब कतन तौर पर ये नहीं कि आपने नमाज पढ़ना छोड़ देनी है, आपने रोज़ा रखना छोड़ देना है, आपने हज उम्रा करना छोड़ देना है, आपने ज़कात अदा करना छोड़ देनी है, आपने ज़िक्र अज़कार करना छोड़ देना है। बल्कि इस बात का मतलब ये है उन चीज़ों को भी उनकी असल रूह के मुताबिक जो है वो समझें और उस पर अमल पैरा हो। साथ साथ क्या करें, मखलूक खुदा की क्या करें, खिदमत करें। मखलूक की जो खिदमत है वो असल में दर हकीकत असल जो है वो नेक अमल मखलूक की खिदमत है। आइए अब खुशखबरी है इन लोगों के लिए जिनमें ये दो प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं? पहली प्रॉपर्टी ये पाई जा रही है कि वो ईमान वाले हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी पाई जा रही है? दूसरी प्रॉपर्टी ये पाई जा रही है कि वो नेक अमल करते हैं। वो नेक अमल क्या है? वो नेक अमल ऐसे हैं कि उन अमाल का उस बंदे की ज़ात से जो है वो ताल्लुक ना हो, दूसरों की ज़ात से जो है वो उसका ताल्लुक हो, दूसरों को नफ़ा पहुंचे। ये है असल में दर हकीकत नेक अमाल। तो जब मैं दूसरों
को फ़ायदा पहुंचाऊंगा, तो बुनियादी तौर पर यही तो वो काम है जो आपका और मेरा रब करता है। जब मैं ये काम करना शुरू कर दूंगा तो रब की और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो फिर वो आपके अंदर जलवागर होगा, और आपके अंदर जलवागर होके फिर वो आपको वो इनामात देगा। कौन से इनामात? जिनका अब आगे मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ। कौन सी खुशखबरियाँ जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वो बंदे जो नेक अमल करते हैं और ईमान वाले हैं, अल्लाह कहता है उनको खुशखबरी सुना दो। खुशखबरी सुनिएगा। उन लोगों के लिए क्या है? रब कहता है उनके लिए बागात हैं जिनमें क्या है? नहरें बहती हैं। नाजरीन, जब मेरी रब की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि मेरे अंदर मेरी जो सोच है, मेरी सोच परवाज करना शुरू कर देगी। जब मेरी सोच परवाज करेगी तो मेरा रब क्या करेगा? मेरा रब मुझे मुशाहिदात करवाएगा। मेरी सोच का परवाज करना और उन मुशाहिदात को देखना, ये दर हकीकत वो बागात हैं और वो नहरें हैं, वो जो फिर मेरे अंदर जारी कर देगा। वो बागात और नहरें जो हैं वो मेरे अंदर क्या करेंगी? वो मेरे अंदर जो है मुझे रब के करीब करती जाएंगी, और रब के ज़ात के जो मुशाहिदात हैं वो मुझे होते जाएंगे। यही मुशाहिदात दर हकीकत वो फल हैं जिनका तज़किरा आगे मैं इस आयत मुबारका में करूँगा। तो नाज़रीन, इन तमाम बातों का कनेक्शन अगर गौर करें तो रब तक पहुँचने का रास्ता रब की मखलूक से होकर जा रहा है। नंबर 1, पहले बने ईमान वाले। नंबर 2, उसकी मखलूक की करें खिदमत। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा होगी, आपका और रब का ताल्लुक पैदा होगा। वो ताल्लुक ही बेसिकली वो बागात हैं, वो ताल्लुक ही बेसिकली वो नहरें हैं जो आपके अंदर जो है वो जारी हो जाएंगी। जब वो आपके अंदर जारी होंगी फिर होगा क्या? फिर वो मुशाहिदात की एक बारिश होगी आप पर, वो अपनी रहमत नाज़िल करेगा आप पर। वो मुशाहिदात बेसिकली वो फल हैं जिनका जिक्र मेरा रब करता है कि जब इन्हें इन बागात में से कोई फल खाने को दिया जाएगा। अब यहाँ पर इस नुक्ते को समझिएगा। रब कहता है कि जब उन्हें इन बागात में से कोई फल खाने को दिया जाएगा फिर होगा क्या? जब मैं उधर जन्नत में जाऊंगा तो उधर जाके मैं कहूँगा ये तो वही फल है जो हम दुनिया में खाते थे। हालांकि वो फल वो नहीं होगा बल्कि उससे मिलता जुलता होगा। इस नुक्ते को समझिएगा। जब मैं इधर इस दुनिया में रहकर अल्लाह की रहमत जब मेरे पे बरसेगी, मेरा रब मुझे मुशाहिदात करवाएगा, तो दर हकीकत ये मुशाहिदात वो फल हो गए। अब जब मैं इस आलम से वापस उस आलम की तरफ पलटूंगा, मतलब मैं इस आलम से उस आलम में मुंतकल हो जाऊंगा, ज़ाहरी तौर पर पर्दा कर जाऊंगा, वहां पर जब मैं उन हकीकतों को दोबारा देखूंगा तो मैं तो सोचूंगा यार ये तो वही मुशाहिदात हैं जो मुझे दुनिया में करवाए गए थे। हालांकि इस दुनिया में रहकर मैं वो जो मुशाहिदात कर रहा हूं वो असल नहीं है। असल मैं तब देखूंगा जब मेरे सामने हकीकत आश्कार होगी, तो वहां पर मैं कहूंगा यार ये तो वही मुशाहिदात हैं जो मैंने ज़मीन पर किए थे। तो यही वो फल हैं जिनका मेरा रब जिक्र कर रहा है कि जो हमें दुनिया में पहले दिया गया था, हालांकि वो असल नहीं थे, उनसे क्या थे? मिलते जुलते थे। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आप इन मुशाहिदात तक पहुँचें तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी मखलूक की खिदमत करनी पड़ेगी। और आखिर में मेरा रब इरशाद फरमाता है उनके लिए जन्नत में पाकीज़ा बीवियां होंगी। नाज़रीन, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बीवी को मर्द की राहत के लिए बनाया गया। यहाँ पर बीवी का तज़किरा इसलिए किया गया कि जब वो हकीकत मेरे पर उस दिन आशिकार होगी तो मैं इतना सुकून महसूस करूँगा, इतनी राहत महसूस करूँगा कि मुझे और किसी चीज़ की खबर ही ना रहेगी। और रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो जाओ, तुम्हें खुशखबरी देता हूँ मैं। क्या खुशखबरी? कि तुम उस सुकून में, उस राहत में हमेशा के लिए रहोगे। नाजरीन, ये कुरान सवाब के लिए नहीं उतरा, ये कुरान हदायत की किताब है। खुदारा इस हदायत को समझें, गौर व फिक्र करें
میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جنت میں ہم سب اکٹھے ہوں جس جنت کا میرا رب اس آیت مبارکہ میں تذکرہ کر رہا ہے۔